students to my channel on Chemistry with Mohit Saxena. Now I am presenting my new video on the first chapter of class 11, that is some basic concept of chemistry, and a very important topic, mole concept. I am sure that by watching video you can understand mole concept in a very easy way and can solve the problems based on mole concept. This particular topic is as important as in 11th class but more important for competitive exams. So, before understanding the mole concept, we should first know what is atomic mass and molecular mass, etc. Because mole concept is directly related to gram atomic mass, gram atoms or gram molecular mass, etc. So, what is atom? First of all, atom is the smallest particle of an element which may or may not have इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हमें पता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज मे बी एलिमेंट और कंपाउंड विच इज कैपेबल of independent existence is called molecule. Here I am telling what is molecule. Molecule is the smallest particle of a substance. It may be element or compound which is capable of independent existence. उसकी अपनी एक independent existence होती है. Now, first we should know what is atomic mass. As we know, an atom of an element is the small particle that its mass cannot be determined even with the help of sensitive balance. कि एटम जो है वो इतना स्मॉल पार्टिकल है कि उसका मास हम किसी सेंसिटिव बैलेंस के यूज करके भी हम निकाल नहीं सकते. To overcome this difficulty, atomic mass is expressed as relative atomic mass and its unit is called atomic mass unit or AMU and also known as now as unified mass U. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए अब हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने एक नया मेथड निकाला कि उसको एक्सप्रेस करें एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड उस रिलेटिव एटॉमिक मास की उन्होंने यूनिट दी एटॉमिक मास यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड यूनिफाइड मास. पहले उन्होंने एक्सप्रेस किया इसको हाइड्रोजन के टर्म्स में, बट आफ्टर दैट रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड as compared to isotope of C12. So, relative atomic mass is expressed comparing with stable isotopes of carbon 12 with mass number 12, and it can be defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to that of an atom of carbon 12 taken as 12. कहने का सेंस ये है, किसी भी एटम का जो रिलेटिव मास है, एवरेज रिलेटिव मास है, वो कार्बन 12 को रेफरेंस मानते हुए उसके एक एटम जिसका कि मास हम मास स्पेक्ट्रोस्कोप के बेस पर, स्पेक्ट्रोमास के बेस पर 12 मान के चलते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं. तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन 12. क्योंकि 1/12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब रिलेटिव निकालना है, कार्बन का जो एटॉमिक मास वो हमने कितना लिया है आपका 12, तो उसका 1/12 कर देंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा वो 1, और कंपेयर कर सकते हैं. तो एटॉमिक मास अगेन आई एम टेलिंग यू द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12. सो इट कैन बी रिटन एज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ carbon atom C12. Now, what is gram atomic mass? Gram atomic mass of an element whose mass is in grams is numerically equal to atomic mass, or we can say atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass. I am telling you gram atomic mass क्या है, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास वह मास है ग्राम में
जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल इक्वल होगी उसके एटॉमिक मास के, या हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 ग्राम। एज वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1.008 U, but when it is represented in gram, it is written as 1.008 gram. Similarly, gram atomic mass of oxygen is 16 gram. But it should be noted that gram atomic mass is the mass of an atom of an element. ये नोट करना है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसी भी एलिमेंट के एक एटम, यहां पर ये दोबारा बोल रहा हूं, बट इट शुड बी नोटेड दैट द ग्राम एटॉमिक मास इज नॉट द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम के मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एक ग्राम एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। इट विल टेल यू लेटर। नाउ व्हाट इज ग्राम मोलर मास? Molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecular mass. Example, gram molecular mass of oxygen, that is 32 gram. Now here mole concept. What is mole concept? Very important one, important topic for competitive exam and for the quantitative chemistry. जहाँ भी क्वांटिटी निकालनी होती है उसमें क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है। Atoms and molecules are very small, that counting those subatomic particles and their weight is very difficult. इतने छोटे पार्टिकल्स हैं एटम और मॉलिक्यूल्स की उनका काउंट करना किसी दिए हुए सैंपल में या उनका वेट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इंट्रोड्यूस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसको हमें रिलीफ लेने के लिए, आसानी से मॉलिक्यूल्स और एटम्स का क्वांटिटी को बताने के लिए हमने मोल को एक दोबारा से एक नई क्वांटिटी निर्धारित की है। दोबारा बोल रहा हूं आपको। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इंट्रोड्यूस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एज वी नो, मोल इज द SI यूनिट of amount of a substance in chemistry. SI यूनिट जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें जानते हैं कि amount of substance की जब यूनिट हम बताते हैं तो हम क्या बताते हैं? आपका मोल बताते हैं। तो मोल कुछ नहीं है, एक देखा जाए तो क्वांटिटी को डिटरमाइन करने को, क्वांटिटी को बताने का एक तरीका है, एक नया मेथड है। सो जैसे कि हम एक डजन की बात करते हैं, when we called a dozen, तो 1 dozen means 12 irrespective to the nature of article which we are purchasing. When we are telling one dozen pens, then that means 12 pens. When 1 dozen banana, that means 12 bananas. Similarly, mole represent the fixed number of particles irrespective to the nature of entities. Generally, 1 mole represent the 6.023 into 10 to the power 23 particles. Here 6.023 into 10 to the power 23 is Avogadro number and is represented as Na. Na is equal to 6.023 into 10 to the power 23. So we can say, for example, 1 mole of hydrogen atom can be written as 6.023 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Now similarly, 1 mole of hydrogen molecules, अगर हम molecules की बात करें तब भी क्या रहेगा? 6.023 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen. 1 moles of ions, that is 6.023 into 10 to the power 23 ions. So 1 mole always represent a fixed quantity, that is Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23 irrespective to the nature of entities, either it is atoms, molecules or ions, etc. But here we should know why the quantity 6.023 into 10 to the power 23 taken as 1 mole. As we know that atoms and molecules are so small that it is very difficult to count actual number of atoms or molecules in the given sample of a substance. So mole is defined in terms of mass. कहने का सेंस ये है कि मोल जो है 6.023 into 10 to the power 23 जो है वो नंबर्स हैं। अब इस नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने वहां मोल को डिसाइड किया। लेकिन ये क्वांटिटी कहां से आई ये भी आपको बताता हूं।
लेकिन जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है मोल्स की वो मास के टर्म में है। वो क्या कहता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो क्वांटिटी है जो जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होते हैं, उतने ही एंटाइटीज होती हैं जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ ए कार्बन एटम डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज 1.99 into 10⁻23 ग्राम। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम that is 12 upon 1.99 into 10⁻23, so it becomes 6.023 into 10⁻23. So we can say 1 mole is equal to 6.023 into 10⁻23 एंटाइटीज। कहने का सेंस ये है कि जब कार्बन 12 में हमने बताया जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही वही सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। तो जब हमने 1 मोल में कार्बन के पार्टिकल्स निकाले वो कितने आए आपका 6.023 into 10⁻23 एंटाइटीज। हेंस वी कैन से 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट दैट कंटेन दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर ऑफ एंटाइटीज। नाउ मास मोल रिलेशन। मास मोल रिलेशन क्या है? एज वी नो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ऑल्सो 1 मोल रिप्रेजेंट, ये क्या इसको क्या कहेंगे, ये तो अब जब 12 ग्राम हम कार्बन का कह रहे हैं तो हमने बताया आपको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम एटम्स कहेंगे। तो 12 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ग्राम एटम कार्बन को। ऑल्सो 1 मोल रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम। अभी जो जैसे बताया मैंने आपको कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बताता है कि उसमें उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जितने 12 ग्राम में होंगे। सो वी कैन से 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 एटम्स, और यही क्वांटिटी क्या कहला रही है आपकी ग्राम एटॉमिक मास कहला रही है। हेंस 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 एटम्स और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस। सो वी कैन से मास मोल रिलेशन में ये बात निकल के आती है, या वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट 1 मोल ऑलवेज रिप्रेजेंट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस और एलिमेंट। दोबारा बता रहा हूं, 1 मोल अगर ग्राम में किसी एटम का मास एलिमेंट का दिया है तो वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ग्राम एटम्स एंड मोल इज अ सिमिलर थिंग। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड की बात करें, 1 मॉलिक्यूल की, द 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ऑल्सो इट ऑल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा ग्राम मोलिकुलर मास को, और उसमें मॉलिक्यूल्स अगर हम देखेंगे तो कितने रहेंगे एवोगाड्रो नंबर के। मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इट इज फाउंड दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन 22.4 लीटर एट एनटीपी। किसी भी सॉलिड और लिक्विड का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम उसका मास निकाल सकते हैं ग्राम में, और उसकी डेंसिटी पता करके हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 मोल का मास हम इजीली ग्राम्स में निकाल सकते हैं, और जब मोल्स का ग्राम में मास आ जाएगा उसको डेंसिटी से डिवाइड करके तो सॉलिड लिक्विड का मास तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन गैसेस के लिए जब हमने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया है तो ये पाया गया है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन 22.4 लीटर एट एनटीपी। सो वी कैन से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम्पल दे रहे हैं 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। नाउ कैन अंडरस्टैंड 1 मोल and other quantities relation with the flow chart as। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बताया रहा हूं हेल्प से कि 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर बात करें तो 22.4 लीटर एट एनटीपी ऑफ एनी गैस। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स, दे मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। इन टर्म्स ऑफ मास, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, फॉर एग्जाम्पल 23 ग्राम ऑफ सोडियम, बिकॉज mass of carbon is 12 in grams, 12 gram. Similarly mass of sodium is 23 gram. 1 more अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ग्राम में तो वो आएगा 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2। सिमिलरली वाटर के लिए 18 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ वी कैन राइट इट एज ए सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं गैस का कि 1 मोल ऑफ CO2
दैट इज इक्वल टू, अगर इसके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम अगर मॉलिक्यूलर मास से इसको रिलेट करें तो 44 ग्राम्स ऑफ CO2। अगर इसके वॉल्यूम से रिलेट करें तो 1 मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। एबव रिलेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला से कुछ लोग रन करना चाहते हैं तो उनके लिए है moles of an element is equal to mass of element upon gram atomic mass. Similarly, moles of a compound is equal to mass of a compound upon gram molecular. Similarly, mass of an atom, अगर हमें mass निकालना है तो mass of an atom और molecule is equal to हुआ atomic mass और molecular mass जो भी दिया है, अगर atom है तो atomic mass यूज करेंगे, molecule है तो molecular mass यूज करेंगे upon 6.023 into 10⁻23, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल का जो मास है वो उसके एटॉमिक मास इन ग्राम या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है सिंपल से। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 U इन ग्राम, दैट मीन्स यूनिफाइड मास और ग्राम्स में क्या रिलेशन होगा। एज वी नो 1 U इज इक्वल टू द जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट एज वी नो दैट 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, और ये किसने के बराबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम अगर निकालेंगे, तभी ऐसे मैंने बताया था मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूले से। सिमिलरली यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू हुआ 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। सो ये निकल के आएगा आपका 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो 1 U इज इक्वल टू, अभी ऐसे मैंने बताया 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम कितना है आपका 1.99 इंटू 10⁻23। सो 1 U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 U इज इक्वल टू हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सो यूनिफाइड मास और ग्राम में क्या रिलेशन आया, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक और एग्जाम्पल लेके चलेंगे, न्यूमेरिकल सा है छोटा सा अभी, उसके बाद अगली वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। हम स्टोरी आपको इसमें आगे की समझाएंगे न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। दोबारा बता रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। कोई वॉल्यूम दिया हुआ है ऑक्सीजन का, जैसे मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो भी चीज़ हमें पहले गिवन है हम वो पहले नोट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट एज वी नो दैट 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हैंस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP रिप्रेजेंट 11.2 upon 22.4 that is 0.5 mole of oxygen, half mole of oxygen. So 1 mole of oxygen contain 6.023 in 10⁻23 molecules of oxygen. So 0.5 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर बिकम 3.01 in 10⁻23 molecules of oxygen. अब एटम्स निकालने के लिए एज वी नो दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या है आपका 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है उसमें। सो 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा हमारे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। सो these are the 2 simple examples today I have given. In the next video, detailed numerical problems will be explained and आगे बात करेंगे इसमें और लिमिटिंग एजेंट है या इससे आगे एक्सटेंड करेंगे। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो से आपको मोल कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी, अपने फ्रेंड्स को बताइए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से के साथ, जिससे कि वो भी इसको आगे समझ सकें मोल कॉन्सेप्ट को। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल so that more and more video can reach to you and you can understand chemistry in a simple way. Please watch till the end to understand mole concept, and I will give you simple methods to understand the chemistry in the next video also. So please like and subscribe my channel
like the video. Thank you again.